Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll be continuing with the remaining part of our chapter number 5, the presentation of data. So today we'll be continuing with our remaining chapter and we'll learn about the kinds of table. In my previous video I have told you how to make a perfect table. Basically it was all about the format of a table. Now we'll continue further with this chapter. Talking about the kinds of tables, it could be divided into three basic categories. According to the purpose, according to the originality and according to the construction. So these are the basic three categories when we talk about the kind of tables. Further we'll study that these categories are further subdivided into another category. Firstly we'll talk about the type of table which is according to the purpose. When we say according to the purpose, it is further divided into subcategory of journal and special table, right? Similarly, the originality. When we talk about table according to originality, it is subdivided into two categories, original and the derived table. And lastly, we have the according to the construction table, which is further divided into simple and complex. And complex is again subdivided into three categories, double, triple and manifold. So this is the basic structure of kinds of table. Now let's see accordingly one by one what is all of these kinds. So talking about the very first kind of table which is according to the purpose. नाम से ही पता चल रहा है purpose मतलब किस हिसाब से हम बनाएंगे, right? तो इसके अंदर दो कैटेगरी होती है सब डिवीजन. पहले है जर्नल पर्पस और दूसरा है स्पेशल. नाम से ही पता चल रहा है इन जर्नल अगर हम कोई चीज करते हैं ओके तो वो जर्नल यूज के लिए है, नॉर्मल यूज के लिए, राइट? इट इज ऑफ जर्नल यूज, डज नॉट सर्व स्पेसिफिक पर्पस. कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए हमने टेबल नहीं बनाई है. जनरली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिपोर्ट ये ग्रुप ऑफ डेटा को हम अटैच कर देते हैं ओके. And generally this type of table is attached with some of the official report like Census of India etc. And also these type of table or the kind of journal purpose table is also known as reference table. भाई अगर कल को कुछ रेफरेंस करनी पड़े, कुछ डेटा वगैरह को देखना हो तो these are the table which are attached with the official report. Okay, therefore it is also called a reference table. Then the second subcategory of the table is special purpose, right? So it is a table with some specific purpose. Purpose मतलब किसी काम से बना है तो therefore इस table का कुछ काम रहेगा, specific purpose है, right? And also some table are constructed with the limited to the problem. कुछ प्रॉब्लम्स को ही ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. एंड जनरली द डेटा इज प्रेजेंटेड एज द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस. इस टेबल के अंदर जो डेटा है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं? एज ए रिजल्ट. भाई हमने फाइंडिंग निकाली है, उस डेटा को एनालाइज किया, उसका ये रिजल्ट निकला. देयरफॉर this type of table is also called the summary table. summary क्या होता है? conclusion लिखना, right? तो summary table बोलते हैं special purpose table को. Then we have the other category of table which is when tables are constructed according to the originality. originality मतलब origin, कहाँ से आए हैं डेटा उसके हिसाब से करेंगे. So very first is the original table. As the name only suggests, it is the kind of table in which data are present in the same way they have been collected. जैसे कलेक्ट किया बस वैसे ही ओरिजिनली उसको लिख दिया. नो मैटर कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई अट्रैक्टिव वे ऑफ राइटिंग डेटा नहीं है, राइट? तो सिंपली जैसे कलेक्ट किया था वैसे ही डाल दिया. इट इज कॉल्ड द ओरिजिनल टेबल. Whereas the second one is the derived table. Derived मतलब उससे निकाला हुआ क्या चीज निकल के आई. Okay, so derived table is the one when the data is converted into ratios and percentage. उससे हमने ओरिजिनल डेटा से कुछ निकाला, रेशियो लगा अप्लाई किया, परसेंटेज अप्लाई किया एंड देन वी हैव डिराइव्ड द कंक्लूजन. उस डेटा को अगर हम फिर टेबल में प्रेजेंट करें that table will be called as the derived table. Then the third category is
कंस्ट्रक्टिंग द टेबल अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब पहले है भाई हम कैसे बनाएंगे टेबल को। ओके तो सबसे पहली कैटेगरी आती है सिंपल और वन वे टेबल। सिंपल टेबल क्या है? जिसके अंदर एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, एक ही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो इट इज द टाइप ऑफ टेबल विच शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। Do not get confused. I'll be now making the table so that it is very much clear in your head what do I mean by one characteristics. Example of one way table is, क्या बोला था मैंने कि वहां सिर्फ वन कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है डेटा की। ओके एक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि क्लास की बात करें भाई BA1 में 200 बच्चे हैं तो एक ही बात पता चली ना, BA2 में 100 है, BA3 में 80 है एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 380। सो बेसिकली लुकिंग एट दिस टेबल वी ओनली गेट टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स है एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पता चली, बच्चों के बारे में और कुछ पता है नहीं। द सेकेंड थिंग हियर इज द कॉम्प्लेक्स टेबल विच इज नॉट द सेकेंड विच इज द थर्ड कैटेगरी, राइट। तो थर्ड कैटेगरी में हम बात करें द कॉम्प्लेक्स टेबल। ये वाले कौन से टेबल होते हैं? The table in which more than one characteristics of data is revealed. डेटा के एक कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा चीजों के बारे में पता चले, राइट। Therefore इसको हमने बोला है कॉम्प्लेक्स टेबल। एंड फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरी। 3 सब कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है एंड लेट्स सी व्हाट आर दिस सब कैटेगरीज। फर्स्ट इज द डबल और द टू वे डेटा। टू डबल नाम से पता चल रहा है, अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल विल शो एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलेंगी यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टेबल बनाया मैंने, यहाँ क्लास पता चल रही है, क्लास के अंदर हमें एक तो टोटल स्टूडेंट्स पता चल रहे हैं प्लस हमें ये भी पता चल रहा है कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, राइट। सो 1 कैरेक्टरिस्टिक्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डबल और 2 वे डेटा क्या है, कौन सा टेबल है जहां हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड वी हैव ट्रिपल डेटा और टेबल। ओके दिस टेबल शोज अस दी 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी दिखाता है, राइट। तो ये टेबल बनाई है मैंने। फर्स्ट में हमें पता चल रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं सेकेंड कैटेगरी, और इसके अंदर कितने बच्चे अर्बन एरिया से आते हैं और कितने रूरल एरिया से आते हैं थर्ड कैटेगरी हमें पता चल रही है। बेसिकली द टेबल शोइंग 3 कैटेगरीज will be considered as triple table. Lastly, in complex table we have the other subcategory which is called the manifold table. It is a type of table in which more than 3 characteristics are available. Okay, for example जैसे ये टेबल देखो आप, इसमें आपको 3 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ पता चलेगी। कैसे? क्लास, टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चले हमें, एरिया का पता चलेगा रूरल से कौन है, अर्बन से कौन है, और उनमें से मैरिड कौन है और अनमैरिड कौन है, राइट। जब हमें किसी टेबल से मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं, दैट टेबल इज नोन एज द manifold टेबल। देन फर्दर we have another topic in this chapter which is all about the classification of data and the tabular presentation. When we talk about how to classify data and present them in a table, it is further divided into 4-fold classification. 4 तरह की हमारे पास presentation, tabular form of presentation and also the classification of data है। तो हम 4 तरीकों से इनको classify करते हैं और present करते हैं। Let's see what are this 4-fold classification. First we have the qualitative classification of data and tabular presentation. Qualitative मतलब हम यहाँ डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे on the basis of the attributes, right? Attribute उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टेबल है तो यहाँ मैंने जेंडर लिया, यहाँ लोकेशन ली। जेंडर में मेल है कि फीमेल है, एरिया से अर्बन है कि रूरल है। बेसिकली मैंने कैसे इनकी एट्रीब्यूट, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये मेल है, ये फीमेल है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। जब हम कभी टेबल को कैसे प्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। द सेकेंड टाइप इज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी जैसे हम यहाँ नंबर्स में मेंशन करेंगे,
लाइक इन दिस टेबल हमने मार्क्स दिए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हैं. सो बेसिकली यहाँ और कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट नहीं बताया है, ओनली द क्वांटिटी ओके is mentioned here, therefore it will be called as quantitative classification. So third we have the temporal classification. Temporal मतलब according to time आपको इसको classify करना है, right? So according to time मतलब आप बताओगे किस समय कितना कुछ data रहा, right? So जैसे example दिया है sales of mobile, तो मैंने यहाँ year specify किया, year will signify my time and यहाँ मैंने बताया कि कितनी sale हुई है, right? सो लाइक 2016 में मैंने कितने मोबाइल बेचे 50,000 कुछ यूनिट, राइट. 2017 में 70,000 कुछ बेचे, 2018 में 35,000 कुछ सेल हुए. सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज अकॉर्डिंग टू द ईयर, पर्टिकुलर ईयर में कितने सेल हुए. देयरफॉर व्हेन वी क्लासिफाई द टाइम और द डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम, it is called the temporal classification. And lastly we have the special classification. This classification here will be classifying the data according to the place or the location. Place और location के हिसाब से हम इसको classify करेंगे. For example, यहाँ country दी हुई है, यहाँ number of students दी हुए हैं. Like in USA we have 50,000 students, UK we have 15,000, Japan we have 5,000. So here the data is divided according to the place or the location. So this is called the special classification. Then lastly we have the merits. भाई हमें tabular presentation क्यों करनी चाहिए in form of table, इसकी क्या merits है. So number one is it become very simple and brief. टेबल में अगर आप ढंग से लगाओ तो देखते ही आप at the very first glance you can figure it out टेबल किस बारे में है, राइट. एक बहुत सिंपल प्रोसेस है और ब्रीफ तुम्हें पता चल जाता है डेटा के बारे में. सेकंड, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, और इजीली आप डेटा को अब कंपेयर कर सकते हो क्योंकि तुमने उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है. सो इट इज ईजियर व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन. देन थर्ड इज इजी एनालिसिस, अब उसको पढ़ना समझना भी इजी हो जाता है, एनालिसिस भी इजी हो जाएगा. फर्दर हमें टेबल से पता चलता है कि हाईलाइट क्या है टेबल की, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टेबल की, क्या चीज़ वो टेबल बोल रहा है, राइट. एंड लास्टली इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल क्यों, घर बैठ के टेबल में ही तो प्रेजेंट करना है, कोई फालतू खर्चा तो लगेगा नहीं. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द टैबुलर प्रेजेंटेशन. गाइज डू ऑल द काइंड्स एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन रियली वेल, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन जनरली आपको डेटा दे दिया जाएगा, रैंडम कोई भी डेटा है और उसको बोला जाएगा कि इसको इस हिसाब से प्रेजेंट करो. सो अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सी क्लासिफिकेशन में किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू क्लासीफाई द डेटा. दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर, राइट. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना है, डेटा दिया हो बस उसको टेबल में तो लगाना है. तो वेरी स्कोरिंग चैप्टर, डू इट रियली रियली वेल. यहाँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सो दैट यू हैव अ क्लियरर आइडिया, राइट. Giving you the illustration of the type of questions that you can encounter in your exam. Okay, तो इस चैप्टर से guys there could be different type of question and one of it could be like of this very first question, which says prepare the table to show the percentage of rural and urban population in India in the year of 1981, 1991 and 2001. Okay, टेबल से आपको समझ में आ रहा है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब सेंसस की बात कर रहे हैं हम, जो हर 10 साल में होता है, तो 10 साल के गैप में दिया हुआ है, राइट. तो सेंसस ऑफ ईयर का एक कॉलम बनाया. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हमने कैटेगरी डिवाइड की, रूरल एंड अर्बन, सेम. एंड यहाँ टोटल, क्योंकि यहाँ और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ईयर के हिसाब से था, यू विल लीव द स्पेस ब्लैंक. ओके, नाउ this was one type of table construction question that you can get. Now let's see, जब हमें डेटा भी दिया होगा, ओके, तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करें. Type of question that you can get is like this of the question, right. For example, this question says there are 80% who goes on a trip. 80 लोग हैं जो ट्रिप पे जा रहे हैं और ये डेटा दिया हुआ है हमें कि 80 में से 60 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, 14 टीचर्स हैं और 6 मेल पियन हैं. ओके, और उसमें से जो ये टीचर्स हैं, राइट, इस पूरे टोटल में से जो टोटल फीमेल कितनी है, 16 फीमेल है
और 16 फीमेल में से एक फीमेल टीचर है। ये आपको टोटल दिया हुआ है पूरा डेटा। नाउ यू नीड टू प्रेजेंट ऑल ऑफ दिस डेटा इनटू अ टैबुलर फॉर्म। तो पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सब चीज़ों को अलग अलग करेंगे, ओके क्योंकि हम टेबल में एट्रीब्यूट के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो पहले हम फीमेल निकालेंगे, फिर मेल, और फिर बच्चों में कितने मेल है और बच्चों में कितने टीचर्स है, राइट। तो ये सब हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे फीमेल का। टोटल फीमेल कितनी दी हुई थी हमें? 16 है ना, और उसमें बोला था उस 16 में से एक क्या है? फीमेल टीचर है। पीएन के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ, देयरफॉर 0 फीमेल पीएन। तो हेंस अगर हम टोटल निकालें फीमेल अमंग द स्टूडेंट्स में निकालना है कि कितनी लड़कियां थी, ओके। जो 16 में से 1 माइनस कर दो, 1 कौन है? 1 टीचर है। टीचर को माइनस किया तो कितनी गर्ल्स आई? हमारी 15 गर्ल्स आई, राइट। तो हमें पता चल गया 15 जो है बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और एक उसमें से फीमेल टीचर है। हम सिमिलरली मेल्स का भी निकालेंगे, ठीक है। पहले हम नंबर ऑफ मेल निकालते हैं। हमें पता है फीमेल टोटल कितनी है? 15, ओके। उस 15 में से हम टोटल में से 15 को माइनस कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मेल आ जाएगा, राइट। मेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट टोटल कितने हैं हमारे? 60 में से अगर हम 15 जो लड़कियां निकाली थी विच वॉज द गर्ल स्टूडेंट्स, उनको माइनस करेंगे, कितने आ जाएंगे? मेल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट 45। सिमिलरली अब मेल टीचर्स निकालेंगे। टोटल टीचर्स कितनी है? 14, और फीमेल टीचर कितनी आई थी ऊपर? 1। तो 14 माइनस 1 मतलब 13 मेल टीचर हैं। अब इस सब डेटा को हम टेबल में प्रेजेंट करेंगे। जब टेबल में डालेंगे तो पहले जो पार्ट होगा हमारा दैट विल बी सिग्निफाइंग द एट्रीब्यूट कि स्टूडेंट है, टीचर है, पीएन है, ओके। एंड ऑल्सो हमने फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे की है? फर्दर ऑन द क्वालिटी कि मेल है कि फीमेल है, राइट। तो हमने स्टूडेंट्स लिखा, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 60, जिसे 45 तो हमारे मेल हैं और 15 फीमेल हैं। सिमिलरली टीचर टोटल कितनी है? 14, एक फीमेल थी तो एक, बाकी कौन है? सारे मेल। पीएन की बात करें तो सिर्फ 6 मेल पीएन डायरेक्टली लिखा हुआ है, इट मीन्स 0 फीमेल पीएन है। तो आपने प्रेजेंट किया, टोटल करोगे, मेल 64 है, फीमेल 16 है, इसका टोटल क्या है? 80, और ट्रिप गोअर्स कितने थे टोटल? 80। So this is the type of questions that you can get from this chapter. So guys, practice as many as questions as you can, as this chapter is really easy and very scoring. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you liked the video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon under my video. And also, if you haven't subscribed to my channel till now, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day.